Be the introductory session of the public international law. The public international law is a very important subject, though it is boring also, but it depends on you or the individual, how do you study it. The public international law is nothing, it is the basically to understand the diplomacy, to understand the international relation among the countries. So really, if you want to build up your concept in the international law, you have to understand the countries where they are located. If I am talking about Kosovo, you might not be aware where is Kosovo. If I am talking about Ecuador, you are not aware whether it is in Latin America or in the European countries. So you are completely ignored about the location of the country where they are located. So wherever I will use these countries were, you are completely lost. So the first thing is just bring a world map in your room. Whenever you study about any country, just locate that country's location, geographical location on the map, and countries surrounding that country, because generally the countries have the territorial disputes. If the India, where is India located? In Asia? The neighboring countries, we have the issues with the Pakistan and China. We cannot have territorial dispute with the USA, because USA is far away from the Indian territory. That's why the geographical condition, the location of the particular country is very important. If you are not aware about the country's location, please don't read public international law. The first thing, it is equally important to have the map as like you are barracked in the constitution or in other law. You got my point? So the first thing, the public international law is a law or not a law, it is a strong law or a weak law, the difference between domestic law and the international law. If there is some breach of the international law, the breach of international treaty, so who will take the action? Is the military action at the first stage, or the countries will put some economic sanctions? The military actions would be the last resort. Understand? Same way, if you take the case of Ukraine, Ukraine was intended to be a part of NATO, North Atlantic Treaty Organization. So immediately rush to the map, find out the countries which are the member of the NATO, where they are located. Their influx is towards the Europeans and the USA side, very lesser country from the Russian or around the Russian sides, because they are the two powers, the Russia and the USA. The Ukraine intended to be the part of the NATO. The Russia treated it as a threat to their territorial integrity, and the Russia invaded Ukraine. The other countries passively supported, some countries like the members of the NATO, the UK, USA, France, supplied the weapons and the financial aid, but they did not come as a completely block, as a NATO attack the Russia till date. So just to understand this geopolitics, you must aware about the origin of the country also, how the countries were originated. Russia disintegrated into various countries. Pakistan was disintegrated from India. Bangladesh was earlier the eastern Pakistan, part of the Pakistan, but due to some difference in ethnicity, that was separated, though with the help of the Indian army during the regime of Indira Gandhi. So how the countries were merged, evolved, separated, got autonomous regions. कोसोवो की कहानी मैं बताऊंगा आपको अभी आगे जैसे आएंगी. तो जस्ट सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो. अगर आप लोग इस सोचेंगे कि इंटरनेशनल लॉ, अगर आप सिर्फ ये एच.ओ. अग्रवाल और इन पे लग जाओगे ना, तो कभी इंटरनेशनल लॉ नहीं आएगा. मार्क्स माय वर्ड्स. इन किताबों से बाहर उठो, ओपन माइंडेडनेस से पढ़िए कि क्या है ये कंट्रीज क्या है, तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इसमें एक जो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
you will find the question certainly from this topic, not only even your the university examination, even UPSC and state PCS, right? Like the very important, the recognition of a state. Why? What do you mean by recognition? You are recognized by your name. Falana Falana, daughter of Falana. Falana Falana, son of Falana. So your name gives you identity. Your name gives you your recognition. Your name, your qualification, your job, your status gives you recognition in the society. The same way, the country gets recognition. The country is very powerful, economically very sound. Automatically, mostly you can say the countries would run to recognize you. If a country is disputed, very less country will run to recognize you. Like Kosovo, the USA, the France, Italy, they have recognized the Kosovo. But India, Russia, so some friendly country with Russia, they do not recognize the Kosovo as an independent nation. Right? Taiwan, China itself, we are the sovereign country. The Taiwan is a autonomous region of the China. But some countries, very few countries are recognized Taiwan as a country, as a nation. The exact word is a nation. Recognition of the government and recognition of the state is also a different concept. How? I will tell you the one glaring example. You see the Israel. I have shared some maps also to your WhatsApp, because we know that we do not have the smart boards, so I cannot display the map of the particular region. So that's why I have sent the all concerned maps to you. I do not know how many of you have gone through those maps, because it may take the entire, because it took 3 years to identify the concerned the maps which I have shared to you. But I am sure that you will not study even 30 minutes. You see the Israel. If you go into that map, Israel map, the Israel is surrounded by the Muslim countries. Earlier, Israel was a very आप अपने ना इसमें एक बार इजराइल का मैप खोल लें. क्योंकि इजराइल के मैप से आपको पता लगेगा कि कैसे चीजें मूव हो रही हैं यहां पे. देखिए, ये आपका इजराइल का मैप है. अब यहां पर इजिप्ट है. मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाह रहा यहां पे आपको, क्योंकि ये सारे मैप मैंने आप लोगों को दे रखे हैं. लेबनान, सीरिया, आप देखिए ये सारे के सारे कंट्री बड़े डिस्टर्ब कंट्री हैं, खासकर लेबनान, सीरिया वगैरह, ये सारे मुस्लिम कंट्री हैं. तो अब इनका आप देखोगे कि 2 रीजन बड़े न्यूज में रहते हैं. वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी. टेल अवीव इनकी कैपिटल है. जेरूसलम अभी बाद में इन्होंने डिक्लेयर की. यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज एज जेरूसलम एज देयर कैपिटल ऑफ द इजराइल. वी आर स्टिल having our embassy in the Tel Aviv, not in the Jerusalem. So there is some mutual interest, geopolitical interest, because these are the Jews. Historically जो हिटलर ने किया यहूदियों के साथ, जो ये सारा का सारा आपने देखा होगा, जो पूरे, अब देखिए हिस्ट्री की तो क्लास है नहीं. तो होता क्या है
कि कभी जो इजराइल बहुत छोटा सा था, पैलेस्टीन जो मुस्लिम नेशन था वो बहुत बड़ा था, लेकिन इजराइल ने फैलते फैलते पैलेस्टीन को छोटा सा बना के रख दिया है। तो यानी नेशन की जो टेरिटरी है वो बदलती रहती है, कभी वो एक्वायर कर लेता है, कभी उससे कोई एनेक्स कर लेता है ना। तो ये जो टेरिटरी है चेंज होती रहती है, इसका मतलब पॉपुलेशन भी चेंज होती रहती है, राइट। तो यहां पर अब मैं रिकॉग्निशन की बताना चाह रहा हूं कि आज भी 28 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ऐसे हैं जो स्टिल दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल एज ए नेशन। इजराइल इज ए मेंबर ऑफ यूएनओ। आई थिंक वी हैव 193 यूएनओ मेंबर्स, ठीक है। उसमें से 28 जो यूएन मेंबर्स जो हैं वो इजराइल को आज के दिन भी एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। व्हाई? ड्यू टू द वे द इजराइल वाज क्रिएटेड, ड्यू टू द वे द इजराइल टेरिटरी हैड बीन एक्सपेंडेड। तो कुछ नेशन ऐसे बोलते हैं जो शांति से, डिप्लोमेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से जो कंट्री बनती है और जो सरकार बनती है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं सिर्फ। वो अलग अलग हम डॉक्ट्रिन्स देखेंगे कि कैसे, तो हर कंट्री अपने कन्वेंस के हिसाब से, अपने सेट ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब जैसे इसमें मैंने आपके इसमें डाल, पता नहीं ये भेजा कि नहीं भेजा, जैसे आप जितने भी मुस्लिम कंट्रीज देखेंगे ना जो 28 हैं, जैसे अल्जीरिया है, कोमोरोस है, जिबूती है, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरितानिया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सीरिया, ट्यूनीशिया, तो ये यमन और ऑर्गेनाइज्ड इस्लामिक कंट्री के 10 मेंबर्स हैं। तो आप देखोगे कि जो ये 18 + 10 28 कंट्री आज के दिन भी ऐसे हैं जो इजराइल को नेशन ही मानते, लेकिन आप दिल्ली जाओ, इजराइल की एम्बेसी हमारे यहाँ पे है, हमने रिकॉग्नाइज किया है। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि कौन किसको आइडेंटिफाई करता है। इट इज योर वे ना, इफ यू वांट टू मेक ए फ्रेंडशिप विद समवन, तो इट इज योर डिजायर। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ योर फ्रेंडशिप और रिकॉग्निशन ऑफ समवन एज योर फ्रेंड? ही और सी शुड हैव द कैलिबर ऑफ लाइक यू, द कंपेटेबिलिटी लेवल विद यू, ठीक है ना। तो ये कुछ क्राइटेरिया बनाओगे। तो ऐसे ही एज ए नेशन की क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग कंट्रीज में बना रखे, लेकिन बेसिकली जो 4 ब्रॉडर क्राइटेरिया है कि नेशन अपने में नेशन होगा क्या। सबसे पहले तो आप सोचिए कोई ना कोई टेरिटरी होगी, डिफाइंड टेरिटरी होगी, पर टेरिटरी वेरी करती रहती है, जैसे मैंने इजराइल का बता दिया आपको, ठीक है ना। तो कोई ना कोई डिफाइंड टेरिटरी होगी, उस टेरिटरी में सर्टेन पॉपुलेशन भी होगी, वो भी चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, दैट डजंट मैटर। और क्या होगा, एक सर्टेन एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी एक वहां पे, और वो गवर्नमेंट सॉवरन भी होगी, सॉवरन भी होगी कि वो दे आर नॉट अंडर द जुडिक्शन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ सम अदर्स कंट्री, दे कैन डिसाइड, दे कैन बी द सिग्नेटरी ऑफ एनी कन्वेंशन, कोई भी ट्रीटी वो पास कर सकते हैं। लाइक इंडिया, इंडिया इज कंप्लीटली सॉवरन कंट्री, हम चाहें तो जिसके साथ भी अपनी ट्रीटी बना सकते हैं, ठीक है ना। भाई वी आर नॉट सपोज्ड टू आस्क फ्रॉम रशिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम यूएसए। अगर हमने कोई ट्रीटी पास करनी, जैसे एनपीटी हमने पास नहीं की, आज तक नहीं की तो नहीं की, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है आपकी, न्यूक्लियर आपकी जो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये 4 इंग्रेडिएंट बन के एक आपका नेशन बनता है, और यू कैन से स्टेट। अब ये स्टेट जो है, अब एक अच्छा स्टूडेंट जो लॉ का होगा वो ये भी देखेगा कि यार एक तो मैंने आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से पढ़ा था स्टेट, वो स्टेट अपना यहां की बात कर रहा है जिसमें आपकी अदर इंस्ट्रूमेंटलिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है। यहां पर हम स्टेट बात कर रहे हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये 4 चीजें इंटरनेशनल लॉ के लिए जरूरत है, ठीक है। अब अलग अलग कंट्री फिर क्राइटेरिया चेंज करते हैं, देखते हैं ये टेरिटरी एग्जिस्टेंस में कैसे आई। जैसे अभी हमने बताया कि इसको अभी तक कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है इसको, ठीक है। 28 जो कंट्रीज हमने बताया। ऐसे ही पॉपुलेशन, एथनिसिटी, एथनिसिटी डजंट मैटर, ये भी कोई खास, लेकिन यहां पे ज्यादा ये मैटर, कुछ कंट्रीज का अपना अपना क्राइटेरिया है। जो क्राइटेरिया आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है इनके लिए वो क्राइटेरिया ना हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट, कुछ कंट्रीज तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट लेजिटिमेट तरीके से बनी होनी चाहिए, तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल तुम्हें बता ही देता हूं, लगे आता हूं ताकि टाइम बचे।
ये टोबार डॉक्ट्रिन बोला इसने, टोबार डॉक्ट्रिन कुछ नहीं है, डॉक्ट्रिन से घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हुई हैं, जो प्रिंसिपल फॉलो किए गए हैं, बस उसी को डॉक्ट्रिन का नाम दे दिया। अब जैसे आप देखेंगे, नो रिकॉग्निशन फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये एक्चुअली क्या है कि ये फॉरेन रिलेशन मिनिस्टर थे इक्वेडोर के। अगर इक्वेडोर, आप मैं बताऊं आपको, जैसे वर्ल्ड का मैप है, तो यहां पे आपका अमेरिका हो गया ये, और यहां पे पनामा और वगैरह ये आपका, फिर ये साउथ अमेरिका हो गया। इक्वेडोर यहां से कोने में है, तो ये इक्वेडोर है, ठीक है। तो ये जो इक्वेडोर है, इसके जो फॉरेन रिलेशन मिनिस्टर थे, जैसे अगर हमारे उससे बात करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोल दीजिए, तो ये वहां उन्होंने क्या किया, द डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड ओनली बी ग्रांटेड इफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन केम टू द पावर बाय लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक, यानी प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए, तो तब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी है, ये उस पार्टिकुलर कंट्री का है। और ये जो मैं डॉक्ट्रिन की बात कर रहा हूं ना, ये ज्यादातर एप्लीकेबल मिलेंगी आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ये भी देखोगे आप अगर इसको थ्रोली पढ़ोगे तो ज्यादातर ये डॉक्ट्रिन्स, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ये जो कंट्रीज थे ना डेवलप्ड, जो यूएसए है या यूरोपियन यूनियंस है, इन्हीं का बोलबाला है। और जब ये जो डॉक्ट्रिन्स, अब इन डॉक्ट्रिन्स की रिलेवेंसी कोई रही नहीं है, क्योंकि उसमें स्टेट्स फॉर्म्ड हुए, डिसइंटीग्रेटेड हुए, दोबारा फॉर्म्ड हुए, कॉलोनीज बनी, और ये सारे जो टेरिटरीज के डिस्प्यूट रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका एक क्लासिकल मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। 2022 में इलेक्शन में वेनेजुला अगेन यहां पे कंट्री है। वेनेजुला अगर आप देखोगे, ये इसमें ही लैटिन अमेरिका में एक कंट्री है वेनेजुला। तो यहां पे काफी ऑयल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहां पे एक्सट्रैक्ट करना ही ऑयल का काफी महंगा है। और हम भी यहां से इंपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे, बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये महंगा बहुत पड़ता है। बाई चांस इनके काफी गहराई में है वो, तो इनकी जो एक्सकेवेशन जो कॉस्ट है वो काफी पड़ जाती है। टेक्नोलॉजी भी प्रॉपर नहीं है इनके पास, ठीक है। अदरवाइज तो कंट्री बहुत रिच होता, जबकि यहां बहुत भूखमरी आ गई है। तो यहां पे क्या है कि वेनेजुला जो है, इसमें क्या हुआ, देखिए अब यूएसए का इन्फ्लुएंस, यूएसए यहां पर बैठा है और पूरे वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड ऑर्डर को वो मैनेज कर रहा है अकॉर्डिंगली देयर विम्स एंड फैंसीज। अब यहां पे जो वेनेजुला में है, अभी वो क्या कह रहे हैं कि देखिए यहां पे पहले आपके क्या थे कि इलेस्टिमेट तरीके से जो यूएस ने चार्ज लगाया वेनेजुला पे कि जो प्रेसिडेंट बने हैं वो धांधली हुई है उसमें इलेक्शंस में, और जो निकोलस मडुरो जो बने हैं प्रेसिडेंट, हम उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो सी द डिफरेंस, यूएसए रिकॉग्नाइज द वेनेजुला एज ए नेशन, एज ए स्टेट, बट डज नॉट रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ द डे। कल को उनके चॉइस के प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो देन दे विल रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट। समझ रहे दोनों बातें? तो स्टेट तो फिक्स है, स्टेट तो स्टेट ही रहेगा, गवर्नमेंट चेंजेस होती रहेंगी। तो यहां पर जो यूएस प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि भाई ये जो इलेस्टिमेट है और हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यूएसए ने ये टोबार डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए और द गवर्नमेंट ऑफ द डे जो ये निकोलस गवर्नमेंट थे इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। तो जब तक आप इंटरनेशनल लॉ में कंट्री को नहीं पढ़ोगे, इंटरनेशनल लॉ समझ में नहीं आना। आई थिंक कुछ इंटरेस्ट बन रहा होगा। तो यहां पर अब जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, जुआन गुआडो को प्रेसिडेंट माना, इंटरिम गवर्नमेंट उसकी मानी, बोला कि हम यहां इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो जो ये हारा हुआ कैंडिडेट है इसको प्रेसिडेंट मानते हैं। सी, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रिगिंग हुई इलेक्शन में, इस वजह से ये इलेक्शन जीता है इसने, निकोलस ने। तो इस तरीके से जो रिकॉग्निशन है, तो आपको यहां कॉन्सेप्ट समझना है कि यार ये रिकॉग्निशन वगैरह क्या है। एक्चुअली बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट हो चुके हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ द डे पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री का इंटरेस्ट। देखिए हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन, द फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो अभी श्रीलंका में क्या हुआ, राजपक्षा जो फैमिली है, चाइना, दैट फैमिली इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना। तो चाइना ने काफी फंडिंग की, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, उनको लोन दिए, और अल्टीमेटली हबन टोटा जो 99 ईयर के लिए कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो रिपे नहीं कर पाया श्रीलंका चाइना को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जहां इंटरेस्ट दिखता है आपको कंट्री का, क्योंकि वो चाइनीज पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, जो चाइना चाह रहा है वहां पे पोर्ट बना रहे हैं, इन ल्यू ऑफ दैट वो उसको पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना।
जैसे अभी नेपाल के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे, लेकिन पीछे काफ़ी नेपाल के साथ भी इश्यू बना, तो फिर हमने क्या किया, उनको थोड़ा सा फंड दिया, क्योंकि चाइना ने काफ़ी फंड दे दिया उनको, ठीक है ना। और पैसे के हिसाब से क्या होता है, आंखें और दिमाग घूम जाता है, चाहे वो आदमी हो चाहे नेशन हो, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली हमने ना चाहते हुए भी क्या हुआ कि कुछ फंडिंग हमने भी दी नेपाल को, कि ताकि वो शांत रहे, थोड़ा प्रो इंडिया भी रहे। इतने सालों से हमने उनकी हेल्प की, एड दी, फाइनेंशियल एड दी, ठीक है ना। तो जनरली नेपाल में जब आपने देखा होगा, जब भी अपने यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है, तो सबसे पहले हम नेपाल के साथ अपना एक प्रकार से जो एक आना जाना फॉरेन विजिट करते हैं, जस्ट मतलब वी आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू नेपाल। अब आ जाइए स्ट्राडा डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। ये क्या है कि मैक्सिकन कंट्री यहां पे मैंने बताया था, मैक्सिको, तो ये मैक्सिको के जो थे सेक्रेटरी थे फॉरेन अफेयर्स, तो ये क्या बोलते हैं कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट नॉट लेजिटिमेसी। ये कहते हैं द पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल नॉन इंटरवेंशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल नेशन डज नॉट अलाउ द स्टेट्स टू असेस द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अदर स्टेट्स। यानी रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स डी फैक्टो एग्जिस्टेंस रेदर देन इट्स लेजिटिमेसी। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट अगर कोई एग्जिस्टेंस में आ गई है, हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट से बनी है या इलेजिटिमेट से बनी है। तो यानी ये एग्जैक्टली अपोजिट है। यानी जो आपकी पहले जो हमने टोबार डॉक्ट्रिन पढ़ी थी, जो आपकी इक्वेडोर की है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, इक्वेडोर वर्सेस आपका मैक्सिको। ये इक्वेडोर है और आपका ये मैक्सिको है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि भाई कैसे दोनों की अलग अलग है। अब आपको याद ऐसे रखना चाहिए, मैक्सिको और दूसरी साइड कौन सा था, इक्वेडोर। बिल्कुल इनके दोनों के फॉरेन मिनिस्ट्री की पॉलिसी अलग अलग है, बिल्कुल। अब आपको याद रखना है कि जैसे मैक्सिकन का था स्ट्राडा, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो यूजीसी नेट वगैरह देना है, क्योंकि वहां तो फिर ये मैच द फॉलोइंग रिश्ते क्वेश्चंस आते होंगे और बड़े सिर दर्द करते होंगे ये आप लोगों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो तुम समझ ही गए हो, पर जिनको वो एग्जाम देना, जिनको नहीं देना तो उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको देना है तो उसको याद रखना चाहिए मैक्सिको स्ट्राडा, ठीक है ना। और ई से ये ई अपोजिट साइड है, ये टेबल से ऐसे याद करनी चाहिए बच्चे को, तो नहीं तो फिर ये याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप इमीडिएटली अपना मैप बनाएंगे और उस कंट्री के सामने लिखेंगे और ब्रैकेट में नाम लिखेंगे, ताकि फॉरएवर के लिए वो चार्ट आपके पास रहेगा और आपको याद रहेगा किस कंट्री ने क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने समझ लिया कि भाई जो मैक्सिको है उसको ये लेना देना नहीं है, दे विल नॉट इंटरफियर इनटू द अदर्स अफेयर्स। जैसे अभी जो यूक्रेन के अंदर हो रहा है, तो पहले तो स्टेटमेंट ये आई हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की कि वी आर क्लोजली वॉचिंग द डेवलपमेंट्स इन द यूक्रेन एंड वी आर मोर कंसर्न विद द सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हु वर देयर। और लेटर ऑन फिर वो उस ऑपरेशन का क्या नाम, जिस ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन, जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसका एक नाम कोड दिया जाता है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को लेके आए, ये मोस्टली वही बच्चे थे जो जिनका एमबीबीएस में यहाँ नहीं हुआ, पढ़े नहीं ढंग से, फिर वहां जाकर रो रहे हैं। चलो अपार्ट ए जॉक, माइंड मत करना इस चीज को, सभी बच्चे अच्छे होते हैं। तो उनको यहां पर लेके आया, लेकिन अब कंट्री का स्टैंड क्या है इंडिया का कि वी आर नॉट कंसर्न्ड विद एनी डेवलपमेंट, ठीक है ना। वी आर कंसर्न्ड विद यस कि नेगोशिएशन, इफेक्टिव नेगोशिएशन हो जाए और दिस मे कम टू द एंड। बट इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई स्टैंड नहीं दिखाया है कि वी विल सपोर्ट दिस कंट्री और दैट्स व्हाई। जब रेजोल्यूशन भी आया यूएन में तो इंडिया रिमेन्स एब्सेंट ही रहा, इंडिया ने वोटिंग नहीं किया, क्योंकि एक साइड रशिया इज अ वेरी क्लोज अलाय, सालों से हमारा हिस्टोरिकली एक फ्रेंड रहा है रशिया, और रशिया इज एट वॉर विद द यूक्रेन। तो हाउ कैन वी सपोर्ट द यूक्रेन, आवर इंटायर फॉरेन पॉलिसी विल गेट स्टक हो जाएगी सारी, अगर ये सारा का सारा हो जाएगा। तो हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ के को दुश्मन नहीं बना सकते, जो स्पेशली जो हमारा बहुत क्लोज अलाय रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं। ये एक स्टिम्सन डॉक्ट्रिन है, जैसे आगे
ये बहुत पुराने 1932 की बात कर रहा हूं मैं, और ये आपकी टोवर डॉक्ट्रिन 1907 की है, आपकी स्टाडा 1930 की है आपकी, और ये स्टिम्सन डॉक्ट्रिन जो आपकी 1932 की है। तो अब इसमें क्या आ जाता है, नॉट टू रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल टेरिटोरियल चेंजेस ब्रॉट अबाउट द एग्रेशन। यहां पे जो ये कह रहे हैं, ये अमेरिकन सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, ये इसके नाम पे है। तो आप देख रहे हो कि ये सारी डॉक्ट्रिन यहीं डेवलप हुई है क्या, ठीक है। तो यूएसए के ये जो सेक्रेटरी थे, तो इन्होंने, इनका नाम था स्टिम्सन, तो इनके नाम पे बोला गया। तो ये बोले कि वी विल नॉट रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल टेरिटरी चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द एग्रेशन। जो मैंने टेरिटरी बताई थी कि ईच नेशन हैज सर्टेन टेरिटरी, अगर वो टेरिटरी चेंज होती रह रही है। अब जैसे मैंने इसका बताया था आपको, ये जो यहाँ पे जो कंट्री मैंने बताया था इजराइल, तो इजराइल की टेरिटरी तो बड़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। उन्होंने फलस्तीन को बिल्कुल छोटा सा बना के रख दिया है, और हो सकता है कुछ टाइम बाद कभी फलस्तीन का एग्जिस्टेंस ही खत्म ना हो जाए आफ्टर फ्यू इयर्स, है ना। तो अगर इस पॉलिसी को देखें हम यूएस की, तो उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए था, लेकिन इजराइल को तो दे आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कैपिटल जेरूशलम को भी रिकॉग्नाइज किया। तो ऐसा कुछ स्टैंड नहीं है, आज फॉरेन सेक्रेटरी, आज गवर्नमेंट ऑफ द डे कुछ अडॉप्ट करती है, कल को उसी कंट्री का कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, वो दूसरी पॉलिसी अपना लेती है। तो नथिंग इज सर्टेन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक एक्सरसाइज यू मस्ट नो कि कैसे कैसे चीजें डेवलप हो रही हैं, ऐसे, ठीक है। और फॉर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको सर्टेनली ये पता होना चाहिए कि मैप बनाओ, उसका नाम लिखो और यूएसए का कि इसने ये डॉक्ट्रिन की, इसका ये है। तो अभी हमने देखा पहला क्या था कि डेमोक्रेटिक तरीके से आना चाहिए, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा बोला कि हमें कोई मतलब नहीं है इससे किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है वहां पे, अगर वहां पे उसको वो एक कंट्री बना हुआ है, एक गवर्नमेंट है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तीसरे ने कहा कि ऐसी कोई टेरिटरी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो किसी से छीन के एनेक्शन करके फिर अपने मिलाया हो इस तरीके से। लेकिन ये तीनों की तीनों फेल हैं, कहीं कोई कंट्री कोई स्टिक नहीं है। जिस कंट्री को जो अपना फायदा दिखता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी गाइडेड बाय देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट, वो उस हिसाब से फॉलो करते हैं, ठीक है। अब लूथर वर्सेस सैगोर का एक केस है 1921 का, इसका मैंने हैंडआउट आपको आई थिंक कुछ भेजा हुआ इसके बारे में भी, ठीक है। तो मैंने इसका जो यूके का 1921 का केस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको ध्यान से सुनना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो एग्जाम में देखिए। इसमें एक चीज को हम पहले समझेंगे, किसी का मार्कर भी है क्या, देना कोई। आप लोगों को लगेगा कि आज तो हम इंटरनेशनल लॉ की बजाय ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है। अब तुम रियलाइज भी करते जाओगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। अभी जो लूथर वर्सेस सैगोर का केस है, ये यूके का केस है। देखिए, अगर एक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे मैंने इजराइल बताया, इजराइल बनता है 1948 में, और कोई कंट्री ए या बी इसको रिकॉग्नाइज करता है 1992 में सपोज, ठीक है। तो 1948 और इसके बीच में इस पर्टिकुलर कंट्री इजराइल ने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी भी की होंगी, इसके अपने लॉज भी होंगे, समझ रहे हैं, डोमेस्टिक लॉज भी होंगे इसके, और इंटरनेशनल ट्रीटीज भी की होंगी। लेकिन अभी तक 1992 से पहले के लिए क्या है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं किया किसी पर्टिकुलर कंट्री ने, तो उसके लिए तो ये जीरो है। लेकिन हम 1992 में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो क्या इसके जो पास्ट के एक्ट हैं, जो इसके पीछे के इस दौरान के बीच में जो इसने काम किए हैं, ट्रीटी किए हैं, क्या वो सारे के सारे रिकॉग्नाइज हो जाएंगे या नहीं होंगे? ये क्वेश्चन है जो अभी केस बता रहे हैं हम आपको। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए 1992 के बाद तो चीजें क्लियर हो ही गई है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। मैं पहले के बीच की बात कर रहा हूं, यानी रिट्रोस्पेक्टिव, समझ रहे मेरी बात, रिट्रोस्पेक्टिव। तो यहां पर ये एक लूथर जो है, ये एक ब्रिटिश सिटीजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए रशिया यहां से है, रशिया यहां से है, सबसे बड़ा कंट्री है भाई रशिया, यहां से यूके है, अगर आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है।
यूके तो ब्रेक्सिट से भी बाहर हो गया है। अब मैं बोल रहा हूं ब्रेक्सिट ये वो, अब तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या है ये। तो इसलिए चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ें, चाहे आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ें, अगर अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो इमीडिएटली बिल्डिंग से सुसाइड करो, कोई फायदा नहीं है। मजाक कर रहा हूं ये मैं ये जस्ट टू सेंसिटाइज यू कि रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर इज सो इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी के लिए जरूरी है, लॉ स्टूडेंट के लिए तो बहुत जरूरी है, या जो यूपीएससी वगैरह है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो हर आदमी एक नॉर्मल प्रूडेंस वाला पढ़ा लिखा आदमी अखबार पढ़े बगैर रह नहीं सकता। तो मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां का ये सिटीजन का, इसका टिम्बर का बिजनेस था रशिया में, लकड़ी का। तो हुआ क्या, इसकी टिम्बर की इंडस्ट्री थी सोवियत रशिया में, लेकिन 1917 में क्या हुआ कि रशियन गवर्नमेंट नेशनलाइज हिज फैक्ट्री। अब 1917 में क्या होता है, इसका पहले का बिजनेस था लूथर का, जो यूके का सिटीजन था, यहां पे इसका बिजनेस था, टिम्बर इंडस्ट्री थी। यहां पे क्या किया रशियन गवर्नमेंट ने, टिम्बर इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नेशनलाइजेशन होता क्या है। अभी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने भी बैंकिंग का नेशनलाइजेशन किया था, सारे के सारे जो प्राइवेट बैंक थे वो ओवरटेक कर लिए थे। आपकी यूनिवर्सिटी का भी नेशनलाइजेशन हो रखा है, पहले प्राइवेट संस्था थी, इसको एक्ट बना के गवर्नमेंट की संस्था बना दिया। तो दिस इज ऑल्सो समवट नेशनलाइजेशन, यानी नाउ इट हैज बिकम द पब्लिक एंटिटी। सुन आ रही है आपको बात। तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया इसका। अगर मैं अब नेशनलाइजेशन का ये मीनिंग एग्जांपल से देता तो मैं समझ में नहीं आता। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर क्या किया कि रशियन गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया, नेशनलाइज कर दिया, तो गवर्नमेंट की बन गई। तो जब भी कोई रशियन कोई गवर्नमेंट जब किसी की प्रॉपर्टी लेती है तो ऑब्वियसली उसको कुछ कंपनसेशन वगैरह तो देती है, कम ज्यादा, वो दैट इज सेपरेट इश्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मिस्टर लूथर ने देखा यार, नाउ देयर इज नो यूज टू स्टे इन रशिया नाउ, माई बिजनेस, माई इंडस्ट्री हैज बीन ओवरटेकन बाय द रशियन गवर्नमेंट। तो अब यूके चलते हैं यार वापस, वहां पे अपना टिम्बर का बिजनेस फैलाते हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी में अभी टिम्बर का ही बिजनेस सीखा है, तो मैं वही कर सकता हूं। आई थिंक उसी में सफलता जल्दी मिल सकती है। हर आदमी की कहानी ये होती है, जो एक्सपीरियंस होता है उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे काम करता है। तो क्या हुआ कि इसने 1920 में Mr. Sagor came to an agreement with the Russian nationalized business company to buy some timber. Company sent timber accordingly, but when the timbers reached in the UK, Mr. Luther claimed those timbers were his timbers. जब इसने बंदे ने क्या किया, लूथर ने यहां से कुछ टिम्बर्स परचेज किया। जब वो टिम्बर आई उसने देखा यार ये तो मेरी ही लकड़ियां थी, मेरा ही टिम्बर था, मेरा ही वो है, ये मेरे को ही बेच दिया, ठीक है। Mr. Luther claimed that these timbers were his timbers. He pointed that as UK never recognized the government of Russia as well as Russia wrongfully took over his factory, therefore the civilized court of the UK cannot validate the rule of Russian law. यहां पे इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि दो लॉज के बीच में कन्फ्लिक्शन, अब कैसे डिसाइड होगा, कैसे। तो ये क्या करता है कि यूके के कोर्ट में केस फाइल करता है, लोअर कोर्ट में, कि एक तो क्योंकि रशियन गवर्नमेंट को यूके गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था उस टाइम तक, 1970 तक, ठीक है ना, जब इसका बिजनेस टेक ओवर किया। और जब ये रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो रशियन लॉ लागू नहीं हो सकता, रशियन लॉ लागू नहीं हो सकता रशियन के ऊपर, यूके वाले के ऊपर। तो इसका मतलब वो मेरा जो बिजनेस था ओवरटेक किया वो गलत था, वो कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो इसने लोअर कोर्ट ने क्या किया कि इसके फेवर में फैसला दे दिया लूथर के। अब ट्विस्ट इस केस में क्या आता है कि बाय द टाइम लोअर कोर्ट्स ने हेल्ड किया और अपील में ये किंग्स बेंच के पास गया और उन्होंने हेल्ड किया, दे कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर ऑफ अनदर स्टेट बिकॉज इन द मीन टाइम रशिया वाज गिवन डी फैक्टो रिकॉग्निशन, द कोर्ट आल्सो डिक्लेयर द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन दैट रिकॉग्निशन फ्रॉम 1917। लेकिन 1970 में ये डी फैक्टो, अब ये डी फैक्टो डी ज्योर क्या होता है, अब ये भी आ गया है। ये तुम्हें सिरदर्द रखेगा पूरा, इंटरनेशनल लॉ में डी फैक्टो डी ज्योर क्या है। डी फैक्टो वो होता है, देखो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था अपने टाइम में, एफ पहले आता है एबीसीडी में, तो ये कुछ कच्चा है, यानी वो प्रिलिमिनरी स्टेज की रिकॉग्निशन सी है। जे ज्योर ये पक्का हो गया है,
इसको ऐसे याद किया था मैंने, तो ऐसे आप भी याद कर सकते हो या कोई अपनी ट्रिक बना सकते हो। तो ये प्रिलिमिनरी टाइप का है de facto, एक नोटोरियस सा कंट्री है, बोला नहीं नहीं इसको एकदम रिकॉग्निशन नहीं देते, इनके साथ छोटा मोटा एग्रीमेंट करते हैं, अभी एम्बेसी भी नहीं बना रहे इनके पास हम, वैसे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, कॉन्सुलेट खोल दिया, वो भी बहुत लेटर स्टेज पे। लेकिन जब हमें विश्वास हो गया कि नाउ दिस कंट्री स्टेबल कंट्री, तो जनरली जो कंट्री लड़ाई अनडेमोक्रेटिक तरीके से बनते हैं ना, वहां पे उनके ऊपर हमेशा एक सस्पिशन रहता है, तो उस केस में ज्यादातर कंट्री क्या करते हैं, उसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज करते हैं इनिशियल स्टेज पे। लेकिन जो कंट्री बड़े अच्छे तरीके से बना है, उसमें शुरू में सीधा आप डीजो रिकॉग्नाइज कर सकते हो, परमानेंटली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन, इट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन, इट इज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, कि भैया ये शरारती देश है, इसको पहले आप डी फैक्टो ही तरीके से ही आप इसको रिकॉग्नाइज करो, अभी इसको एकदम आप चौधरी मत बनाइए, इसके साथ पूरे रिलेशन एकदम मत बनाइए। समझ बात आपको, बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में बताया, आप भूलोगे नहीं। तो ब्रिटिश ने इसको 1917 में क्या है, रशिया को डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे दी थी। तो अब किंग बेंच ने क्या बोला कि नहीं, उस समय डी फैक्टो रशियन गवर्नमेंट को, रशिया को हम दे चुके थे अपना देश, इसलिए वहां के लॉ भी यहां रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। तो यानी ये बीच के लॉ भी सारे रिकॉग्नाइज हो गए हैं, पीछे के भी, तो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू हो जाते हैं। अगर आप किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हो तो उसके पाप पुण्य सारे रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, पिछले भी। एक लेमैन की लैंग्वेज, समझ में आ गई बात आपको? तो बिल्कुल एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता दिया आपको डी फैक्टो डी जोर। और ये इंपॉर्टेंट केस है ये लूथर वाला, तो इसमें देख लो, तो इसको इसकी प्ली गिरेगी फिर, ठीक है। एक एक्ट ऑफ स्टेट डॉक्ट्रिन होता है, ये एक्ट ऑफ स्टेट डॉक्ट्रिन, एक्ट ऑफ स्टेट डॉक्ट्रिन क्या होता है कि इट इज द एक्ट ऑफ द स्टेट, इफ इट इज द एक्ट ऑफ द स्टेट वी विल नॉट इंटरफियर इनटू द इंटरनल मैटर ऑफ अदर कंट्री। जैसे अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी, तो इंटरनेशनल मीडिया वाज आस्किंग रिएक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डिप्लोमेट्स। तो इंडिया देखिए, डिप्लोमेसी में यहां तो हम कुछ भी बोल देते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, हमारा पर्पज कुछ और है। लेकिन वाकई में जो आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले होते हैं, डिप्लोमेट्स जिनको बोलते हैं, तो या अपने मिनिस्टर्स हैं, डिप्लोमेसी में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सोच समझ के वर्ड्स का यूज किया जाता है। हम तो बोलने के लिए कुछ बोल देते हैं यहां, लेकिन दे यूज ईच एंड एवरी वर्ड वेरी कॉन्शियसली। पूरा ड्राफ्ट पहले से प्रिपेयर्ड होता है, उसकी अप्रूवल ली जाती है, उसके बाद वो डिस्क्लोज किया जाता है, पब्लिक डोमेन में आते हैं स्टेटमेंट। तो कभी भी आप देख लेना, वर्ड्स बिल्कुल नपे तुले होते हैं डिप्लोमेट्स के, जो भी वो पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं। तो यहां पर इंडियन डिप्लोमेट ने भी ये कहा कि वी विल एज पर द इंडियन डॉक्ट्रिन, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, वी डू नॉट इंटरफेयर into the internal affairs of the other country. It is their internal affairs. सुना बात आपको? लेकिन अभी जैसे मैं बताऊं आपको, यूएस के एक मेंबर ऑफ कांग्रेस, यानी अपने जैसे एमपी बोल देते हैं, वो विजिट पे थे पीओके में, वो पाकिस्तान आए थे, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एलोइस क्या ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने बोला कि ओके आई विल रेज दिस इश्यू, और लेकिन इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन गवर्नमेंट ने उसका अपोज किया, ठीक है ना, और यूएस गवर्नमेंट को कन्वे किया कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट, योर मेंबर ऑफ कांग्रेस और यू कैन से योर डिप्लोमेट और योर यू कैन से आवर एमपी टाइप इज विजिटिंग द डिस्प्यूटेड टेरिटरी पीओके, बिकॉज वी कंसीडर द पीओके एज ए पार्ट ऑफ द इंडिया, they consider as their own territory, so it has become the disputed territory. It means if someone, the US congressman is visiting that area, it means they are strengthening their stand, it is against our diplomacy. फिर उनकी स्टेटमेंट आई कि his visit is not the state sponsored visit, he is on his private visit, वो प्राइवेट विजिट पे है, तो उनका ये स्टैंड आया। नाउ वी आर हैप्पी विद दैट स्टैंड, ठीक है।
तो डिप्लोमेसी में तो ये होता है कि कौन कहां विजिट कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई अपना प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है तो चाइना इमीडिएटली आईब्रोज करता है ना। कोई भी हम डैम बनाते हैं, अभी J&K के अंदर हम डैम बना रहे हैं, अभी अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन किया, ठीक है ना। अब इंडस ट्रीटी जो 1960 की है, बस 3 जो रिवर्स हैं वो डेडिकेटेड हमारे लिए, 3 उनके लिए, उनको सफिशिएंटली जो एक वाटर है उनको दिया जाएगा। लेकिन उनकी कंसर्न ये है कि अगर हमने ज्यादा से ज्यादा डैम बना दिए तो जो पानी है वो नीचे पाकिस्तान जो उनका पंजाब है रीजन उसमें कम जाएगा, तो उनका एग्रीकल्चर अफेक्टेड होगा, ड्रॉट आ जाएगी, उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, है ना। तो दे आर कंसर्न अबाउट दोज एस्पेक्ट्स, बट वी आर मोर कंसर्न विद आवर पीपल। भाई हमारे लोगों को पानी चाहिए और राजस्थान में भी आएगा वो पानी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको इंडस ट्रीटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, रिवर्स मैप में जाके देखिए कैसे वो फ्लो करते करते हुए पाकिस्तान में कहां से जा रही हैं, कौन सी रिवर आपकी J&K से सीधे पाकिस्तान जा रही है, कौन सी रिवर आपकी पाकिस्तान वो J&K से अपना पंजाब होते हुए फिर पाकिस्तान में गिर रही हैं, फिर इंडस रिवर में मिल रही हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ये किस किस के बीच में हुई थी? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1960? तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू थे, उनके शायद अयूब खान थे। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह की चीजें। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी ये कैसे होंगी, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं या और दूसरा लॉ पढ़ रहे हैं आईपीसी, तो वी आर कन्फाइंड टू द इंडियन टेरिटरी ओनली, बट व्हेन वी आर स्टडिंग द इंटरनेशनल लॉ वी आर जस्ट रोमिंग, समटाइम्स वी आर इन द यूएसए, समटाइम्स वी आर इन चाइना, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। बट ये इंटरेस्ट तभी बन सकता है जब आप यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द लोकेशन ऑफ द कंट्री एंड समथिंग लिटिल बिट अवेयरनेस अबाउट दैट कंट्री, कैसे क्या, ठीक है। तो एक्ट ऑफ द स्टेट डॉक्ट्रिन आप समझ गए कि विल नॉट, द वन नेशन विल नॉट इंटरफियर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर कंट्री बिकॉज इट इज देयर एक्ट। ओके, अभी अब जैसे मान लिया, थोड़ा सा मैं कोसोवो के बारे में बताता हूं आपको। देखिए कोसोवो की कहानी बड़ी है अजब। कोसोवो एक सर्बिया का पार्ट है, ऑटोनॉमस रीजन। अब सर्बिया कहां है, सर्बिया के आसपास की कंट्री कौन से हैं? बिकॉज इट इज समथिंग कि आपको ABCD अल्फाबेट्स आ नहीं रहे हैं आज के दिन और आप स्ट्रेट वे सेंटेंसेस सीख रहे हैं आज, कुछ ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, बिकॉज यू आर नॉट मेड टू अंडरस्टैंड द मैप, द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैप। मैप के बगैर कुछ नहीं है और न्यूज़पेपर के बगैर कुछ नहीं है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कोसोवो है ये सर्बिया का पार्ट है। अब इससे पहले मैं बताऊं आपको कि एक बहुत ऑटोमन एम्पायर होता था, टर्किश, तो उनका बड़ा उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उन्होंने सर्बिया को कैप्चर कर लिया। फिर एक यूगोस्लाविया बना, यूगोस्लाविया मिलके कई कंट्री से मिलके बना था और जिसमें आपका ये सर्बिया भी पार्ट था और कोसोवो तो उसके अंदर था ही। लेकिन उस समय क्या था कि देखिए सर्बिया में आपके जो हैं आपके क्रिश्चियंस हैं और आपके सर्बिया में, लेकिन जब ऑटोनॉमस एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ और फिर यूगोस्लाविया बना, फिर यूगोस्लाविया भी डिसइंटीग्रेट हो गया, सर्बिया अलग से बना और सर्बिया का ही एक पार्ट ये था। तो वहां पर क्या था कि पहले क्रिश्चियन ही थे, लेकिन जब मुस्लिम्स, जब ऑटोमन एम्पायर आया तो उन्होंने क्या कि रिलीजन चेंज करवा दिया वहां के लोगों का, क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, ठीक है ना। जैसे अब ये अपना आराम से पहुंच चुकी है सोनीपत, तो वो इस तरीके से क्या है कि आपका जो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ और जो गोरे लोग थे वो काले बन गए, लैंग्वेजेज में चेंजेस आ गया, फूड कल्चरल एथेनिसिटी में चेंजेस आ गए इतने सालों के बाद ऑटोमन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में। तो अब जो कोसोवो वाले लोग थे वो अपने आप को सर्बिया से अलग समझने लग गए, क्योंकि इतने साल उन्होंने वहां की उनकी गुलामी की, उनके हिसाब से रहे और यहां पर वो सर्बिया के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं बनी उनकी, तो कोसोवो वाले बोलते हैं कि हम अलग हैं। तो कोसोवो जो है वहां पे ज्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है अभी, हालांकि हो सकता है कि वो पहले वो क्रिश्चियंस थे जैसे कि लिटरेचर बता रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि इंडिया का स्टैंड क्या है अभी मैं आपको बताऊं। यहां पे वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी इंडिया में, आई थिंक 2018 की बात है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कोसोवो की एक बॉक्सर थी सादिकू, उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इंडियन फेडरेशन, बॉक्सिंग फेडरेशन ने। क्यों? क्योंकि हम कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं एज ए नेशन।
जब ऐसे नेशन ही एंट्री नहीं है तो फिर उसके खिलाड़ी को हम कैसे अलाउ करेंगे खेलना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सी द इंपॉर्टेंस एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ द रिकॉग्निशन. इफ द नेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्टिकुलर कंट्री, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उस कंट्री के लिए. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन थी उन्होंने धमकी भी दी कि इससे आप अपने जो चांसेस हैं कल को आपके ओलंपिक्स के और वर्ल्ड बॉक्सिंग के, तो इस तरह के एवेन्यूज आपको डेलीगेट नहीं किए जाएंगे. तो यहां पर इंडिया का स्टैंड वही रहा. तो इंडिया का स्टैंड खास देखिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम कोसोवो को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर लेते. सर्बिया नाराज हो जाएगा हमसे. अब ये कुछ ऐसा ही मैटर है कि जे.एंड.के इज आवर इंटीग्रल पार्ट. जे.एंड.के अगर कोई विजिट भी करता है तो हम इमीडिएटली अपना प्रोटेस्ट उसके कंट्री के एम्बेसडर को बुलाते हैं और अपना प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं. इफ सम अदर कंट्री starts recognizing the J&K as a nation, independent nation, तो इट इज अगेंस्ट आवर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी. भाई जे.एंड.के इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो तो फिर हमारा दुश्मन हो गया. अगर हम कोसोवो को इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे तो फिर दूसरे कंट्री भी वही सेम प्रिंसिपल एनालॉजी करेंगे कि तुम किस बेस पे डिनाई करो कि जे.एंड.के तुम्हारा हम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर सकते. इसलिए टू प्रोटेक्ट द जे.एंड.के एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, वी विल नॉट रिकॉग्नाइज सच काइंड ऑफ टेरिटरी or such kind of nation or disturbed nation you can say, which have evolved with lot of war, with lot of strife. ठीक है ना, जहां अलग होने की सेक्शन टेंडेंसी की वजह से जो अलग हुए हैं. तो ये जे.एंड.के को प्रोटेक्ट, अपने स्टैंड को प्रोटेक्ट रखने के लिए हम इस तरह की किसी भी टेरिटरी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. मोर ओवर रशिया रिकॉग्नाइज द सर्बिया एज ए नेशन. वी आर अलाइ टू द ऑफ रशिया. USA recognized as a Kosovo as a nation. To see, this is the geopolitics. The one group of nation dominated by USA and other countries recognize the Kosovo as a nation. But other side, Russia, India and other countries, they do not recognize the Kosovo as a nation. अगर उनकी कंट्री को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे तो उनके खिलाड़ी को हम कहां अलाउ करेंगे? समझ रहे हो? तो यहां कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं हम? यू टेल मी. जो हमने 3-4 ये डिस्कस की थी, कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं? अगर कोई कंट्री डिस्टर्ब तरीके से बना और उस तरीके से बना तो कौन सी हमने फॉलो की थी? तो इमीडिएटली वो टेबल देख लेना अपनी, राइट? हाँ, तो देखिए अब ताइवान आ जाइए. रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है, अब ताइवान ही कहता है कि वी आर द रियल रिपब्लिक, ओरिजिनल रिपब्लिक ऑफ चाइना. हमें तो साइडलाइन कर दिया है मेनलैंड से, और ये जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये नकली चाइना है. लेकिन ये जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अब वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रीजन्स है, किस तरीके से वो अपने आप को, तो मोस्टली वर्ल्ड क्या है कि इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करता है. चाइना इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री. ठीक है, तो ताइवान इज द लार्जेस्ट. लेकिन ताइवान, कमाल की बात है, ताइवान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है. तो कुछ कंट्री ताइवान को ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और ड्यू टू जियोपॉलिटिकल आल्सो, वो उसको एज ए उसको कंट्री भी मानते हैं, जिसका चाइना हमेशा अपोज करता है. इफ यू अटर ए सिंगल वर्ड अबाउट ताइवान, इमीडिएटली वहां से उनकी एम्बेसी से स्टेटमेंट आएगी चाइना से. अब यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है. देखिए, आपका इजराइल यूएनओ का मेंबर है, ये भी बाकी की कंट्री जो 28 इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो भी उसके मेंबर है यूएनओ के, लेकिन वो आपस में भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और ताइवान है, ताइवान यूएन का मेंबर ही नहीं है. ठीक है, तो यूएनओ में अगर किसी को मेंबर आना है तो इसका मतलब सब्सटेंशियली कुछ कंट्री तो जरूर उस स्टेट को रिकॉग्नाइज करने चाहिए. आई थिंक तभी वो उसकी कुछ जो एक राइट डेवलप हो पाएगा. समझ रहे मेरी बात? अगर कोई सीधा ताइवान जाके बोलता है कि यूएनओ को आई वांट टू बी पार्ट ऑफ यूएनओ, क्योंकि अल्टीमेटली जनरल असेंबली को सपोर्ट ही नहीं करेगी, उसको वोटिंग ही नहीं करेगी. इंडिया है, नो, भाई वी विल नॉट टेक पंगा विद द चाइना. देखो वो तो उसमें आप चेक कर लेना, क्योंकि अभी मेरे को एज इट इज आई थिंक सिंपल मेजोरिटी होगी उसके लिए. इज नॉट ए बिग इश्यू, आई होप सो. जो यूएन चार्टर है. अब सोमालीलैंड, अब आप देखिए, कोई कंट्री कई बार डिस्प्यूट से बनता है ना, तो आप लोगों को ये जरूर ऐसा लगेगा कि पहले तो वहां पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो टाइप होगा, फिर उसको ऑटोनॉमस रीजन बना देंगे, फिर ऑटोनॉमस, जैसे कोसोवो ऑटोनॉमस रीजन ही तो है.
और बाद में फिर वो इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करता है। तो ये स्टेजेस देखे गए हैं वर्ल्ड में, जो कंट्रीज जिस तरीके से डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ऑटोनोमस रीजन का मतलब क्या है? दे विल हैंडल देयर इंटरनल अफेयर्स, बट एक्सटर्नल अफेयर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो जो मेन कंट्री है वही हैंडल करेगा, ऑटोनोमस रीजन नहीं करेगा। सोमालीलैंड, भाई सोमालिया आपने देखा होगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहां है। सोमालिया के पायरेट्स बड़े फेमस हैं, ठीक है ना, जो समुद्री लुटेरे जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो सोमालिया में भी एक रीजन है सोमालीलैंड, और वो बोलते हैं कि भैया हमने अपने आप को 1991 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन नो फॉरेन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया रिकॉग्नाइज इट्स सॉवरेनिटी, बट मैनी फैक्टली एक्नॉलेजेस द रीजन एज ए सेपरेट फ्रॉम सोमालिया। ओनली साउथ अफ्रीका, इथोपिया, जिबूती, बेल्जियम, फ्रांस, साउथ सुडान, कीनिया, यूएई एक्सेप्ट द नेशंस पासपोर्ट। तो कंप्लीटली तो नेशन नहीं मांग रहे, लेकिन उसका पासपोर्ट तो अलाउ कर रही है कुछ कंट्रीज। लेकिन सोमालीलैंड का कोई पासपोर्ट लेके और अपनी इंडिया में आना चाहेगा तो इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट अलाउड, क्योंकि हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। समझ बात था? तो यानी कोई कंट्री किसी को रिकॉग्नाइज करेगा तो बहुत सारे उसके सिटीजन्स को राइट्स मिलते हैं, वो वहां जा सकता है, विजिट कर सकता है, स्टडी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है ना। लेकिन किसी कंट्री का हमने वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, इट मींस उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं हुआ है कुछ, हमारे लिए तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। सुनाई बात आपको? तो वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द सोमालीलैंड एज ए नेशन। अब जो मैं कंट्री बोल रहा हूं ना, इसको जाके प्लीज मैप पे देखना, आसपास के वो देखना कि मैं सोमालिया बोल रहा हूं तो कहां पे है। पायरेट्स है तो इसका मतलब कोस्टल एरिया पक्का है। एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, यहां पे जाके आपको सोमालिया यहां से मिलेगा, ठीक है। अबकाजिया, ये अबकाजिया आप बोलोगे सर बड़े अजीब अजीब से नाम ले रहे हो, ये अबकाजिया क्या है? जॉर्जिया। अब जॉर्जिया आप जाके देखोगे यूरोपियन कंट्रीज में मिलेगा आपको, तो जॉर्जिया में जाके देखोगे, इसको हम तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को 1980 में इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन रशिया, सीरिया, वेनेजुला ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन इंडिया ने इसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो आप देख रहे कि जिस कंट्री की, अब जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बलूचिस्तान सपोज पाकिस्तान से अलग हो जाता है, या उसको कल को वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं वहां के लोग, perhaps India will be the first country to recognize because we have very worst relation with the Pakistan. तो जल्दी जो रिकॉग्निशन करने के लिए भागते हैं ना, वो एक्चुअली उनके एनिमी होते हैं उस मेन कंट्री के। अब जैसे अफगानिस्तान में जाओगे आप, अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबानी है। जब हमारा एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक किया था, तो वहां पे जिस एरिया में उनको लैंड किया गया था, यही अजीत डोवाल साहब मेन इसके ब्रोकर थे इस डील के। तो अब इंडियन गवर्नमेंट के पास समस्या ये थी कि यार हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट की से बात करें या तालिबानी से बात करें। अब तालिबान को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए हमने मिलिटेंट से बात करनी पड़ी और उनको हम लेके आए, ठीक है। इसके इन लिeu ऑफ दैट हमें कुछ टेररिस्ट को छोड़ना भी पड़ा था। बाद में उसने जेएंडके में अटैक भी किया था, और वो शायद मसूद असर ही था, ठीक है। तो इस तरीके से बार्गेनिंग करनी पड़ी। लेकिन क्या तालिबान को आज हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या तालिबान गवर्नमेंट कुछ एरिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो तालिबान अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दें कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर अलग, हमारा फॉरेन मिनिस्टर अलग और सब कुछ अलग, तो क्या इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करेगा? तो हम तभी हमें जेएंडके दिखेगा हमारा। नो, इस तरीके से जो टेरिटरी क्रिएट की हुई है, हम उसको नेशन नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक विद लॉजिक्स आप समझ रहे हो, ये लॉजिक बहुत अच्छा है इसका। तो देखिए, चलो मैं कट शॉर्ट करता हूं। साउथ ओसेटिया एक जॉर्जिया पार्ट है, वो भी अपने आप को जॉर्जिया से अलग करते हैं, लेकिन यूएनओ ने इसको वो रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये सरावी रिपब्लिक इसको क्या है कि रीजन जो ये माउंटेनियस रीजन्स है, द रीजन्स मेंटेन्स द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद 40 यूनियन स्टेट्स, यूएन हैज नॉट ग्रांटेड इट्स रिकॉग्निशन।
और ये 1985 से लेके 2000 तक अफ्रीकन नेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया ओनली टू बी रिकॉग्नाइज्ड लेटर। आज के दिन 2018 में 85 कंट्रीज ने ये सारावाई रिपब्लिक को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो होता क्या है, जब भी कोई नेशन बनता है, दो चार वेस्टेड इंटरेस्टेड जो नेशन होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो उसके एक्चुअल दुश्मन होते हैं, जिस नेशन से अलग हुआ है। और फिर धीरे 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 क्या होता है कि वो संख्या बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद 50-60 साल के बाद वो जो नेशन जो था, वो सब्सिडरी जो बना था, वो अपने आप में कंप्लीट नेशन बन चुका होता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो आपने जो अभी तक हमने देखा है आपका रिकॉग्निशन और ये सारा, इसमें कुछ थ्योरीज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मतलब पेपर पास करना एक अलग चीज है। जैसे अब ये कहते हैं थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, दो थ्योरीज है। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या है, स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू रिकॉग्निशन ओनली। तो इसके जो एक्सपर्ट्स हैं ये आपको जरूर याद रखने हैं भाई, ये आपको इसलिए याद रखने, सीधा मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं और उसमें आप लोगों को ये बताना है कि इसके एक्सपोनेंट कौन थे, तो ये जरूर आपको याद रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ये कहते हैं कि स्टेट का एग्जिस्टेंस तभी आता है जब उसको दूसरे स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एक हिसाब से तो ठीक भी है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, फ्रेंड नहीं मान रहे हो, तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो चल रहा है दोनों पैरों से, उसका अपना एग्जिस्टेंस तो है। ठीक है ना। तो डिक्लेरेटरी थ्योरी ये कहती है कि नहीं, नेशन तो ऑलरेडी होता है, वो उसके पास टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, ये चारों इंग्रेडिएंट है, बस वो हमने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन अब जैसे ही हम इसको सॉरी जैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये बनेगा, नेशन तो पहले से था। तो ये जो रिकॉग्निशन है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ऑलरेडी सिर्फ तो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेटरी एक्ट है, नथिंग, उससे पहले नेशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के जो लोग हैं, लेकिन ऐसा ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें किसी कंट्री को, ऐसे कंट्री को, डिस्प्यूटेड कंट्री को 5 कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसी को 25 रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसी को 80 से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में है। तो बस आपका काम ये है कि दोनों थ्योरीज को कौन कौन से जो ज्यूरिस्ट हैं वो जैसे अभी पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन को 80 नेशंस रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली पैलेस्टीन को देखना आप, वो सारे के सारे कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो और इसमें मोस्टली जो स्ट्रेंथ मिलेगी मुस्लिम कंट्रीज की मिलेगी, क्योंकि पैलेस्टीन मुस्लिम डोमिनेटेड है, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से भैया मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी। थैंक यू।